کراچی سے خیبر تک کے اخبار میں خوش آمدید، شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سیالکوٹ میں زیر تعمیر پلازا گرنے سے 2 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے میں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیالکوٹ میں عمارت گرنے کے واقعے کے بعد تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ کمیٹی میں ٹی ایم او، ٹی او ریگولیشن اور ٹی او پلاننگ شامل۔ 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ نارنگ منڈی میں پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں میں گندم کے بیج تقسیم کیے گئے۔ زرعی ماہرین نے کاشتکاروں کو بہتر فصل کی پیداوار کے لیے ہدایات بھی دی۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کے لنڈا بازار کی رونقیں بحال ہو گئی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے بازار کا رخ کر لیا۔ ادھر لنڈا بازار میں مہنگائی کا جن بھی بوتل سے باہر آ گیا۔ مظفر گڑھ میں منعقدہ تھل جیپ ریلی کا آج آخری روز۔ ریس میں 65 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ میگا ایونٹ میں سابق وفاقی وزیر جام کمال بھی حصہ لے رہے ہیں۔ خیرپور کے مختلف علاقوں میں پانی کے بحران پر قابو نہ پایا جا سکا۔ پینے کا پانی بھی نایاب ہو گیا۔ شہری منتخب نمائندوں اور انتظامیہ پر برس پڑے۔ گوٹھی میں چولستان کے نواحی علاقوں میں نایاب پرندوں کا شکار جاری ہے۔ 100 سے زائد نایاب تلور شکار کر لیے گئے۔ انتظامیہ اور وائلڈ لائف نے چپ سادھ لی ہے۔ پشاور میں سیکیورٹی اداروں کا سرچ آپریشن، 200 سے زائد گھروں کی تلاشی، 31 افراد گرفتار، اسلحہ اور منشیات برآمد کر لی گئی۔ سوات میں ٹرک کی ٹکر سے دیوار گر گئی، 2 کمسن بچیاں ملبے تلے دب کر جاں بحق ہو گئی۔ پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا۔ آئی جی ایف سی کا دکئی کا دورہ، ایف سی پارک اور ایف سی ہاسٹل کا افتتاح کیا۔ میجر جنرل شیر افغن کا کہنا ہے کہ عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے۔ راولہ کوٹ میں 10 روزہ فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا۔ ملک بھر سے کھلاڑیوں کی شرکت، 16 ٹیمز کو 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، شامل کریں گے پنجاب بھر سے خبریں۔ سیالکوٹ میں زیر تعمیر پلازا گرنے سے 2 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے میں قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سیالکوٹ کے لہائی بازار میں زیر تعمیر 3 منزلہ پلازا اچانک زمین بوس ہو گیا۔ ملبے تلے دب کر پلازے میں کام کر رہے 2 مزدور جاں بحق اور 2 زخمی ہو گئے۔ واقعے کے فوری بعد امدادی ٹیمیں اور ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچ گئے، جنہوں نے اہل علاقہ کی مدد سے جاں بحق افراد کی لاشوں کو زخمیوں کو ملبے سے نکالا۔ ریسکیو کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں سرگودا کا رہائشی اعجاز اور جھانگ سے تعلق رکھنے والا محمد شیر شامل ہے۔ دوسری جانب پلازا گرنے سے ملحقہ مکانوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق سیالکوٹ میں تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کی ملی بھگت سے سینکڑوں غیر قانونی عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں میں گندم کے بیج تقسیم کیے گئے۔ زرعی ماہرین نے کسانوں کو بہتر فصل کی پیداوار کے لیے ہدایات بھی دی ہیں۔ پنجاب حکومت کی جانب سے بیماروں سے پاک گندم کے بیج کی مفت تقسیم کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی اور زرعی ماہرین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ گندم کی بہتر پیداوار کے حصول کے لیے ذمہ دار محکمہ زراعت کی مشاورت سے کاشتکاری کریں تاکہ گندم کی فصل کی بھرپور پیداوار حاصل کی جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کاشتکار اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے آبپاشی کا بھی خاص خیال رکھیں اور فصل کو درکار پانی کی بروقت فراہمی یقینی بنائیں۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین صدیق الفاروق نے کہا ہے کہ بابائے گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے لیے بہترین اور مثالی انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔
ननकाना में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सिद्दीकुल फारूक ने कहा कि वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर पूरी ईमानदारी और नेक नियति से काम कर रहे हैं। वजीर आज़म की हिदायत के मुताबिक सिख बरादरी समेत तमाम अक़लियती बरादरी के तमाम त्योहारों पर बेहतरीन इंतजामात की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अलीपुर ता मुजफ्फरगढ़ मेन शाहराह पर वन वे ना होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। अहले इलाका ने मेन शाहराह को कातिल रोड का नाम दे रखा है। मजीद जानते हैं अलीपुर से मलिक फयाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। अलीपुर तो मुजफ्फरगढ़ 80 किलोमीटर सड़क वन वे ना होने से हादसात मामूल बन चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में कीमती जानों का ज़िया और अरबों रुपए की गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। कराची ता पिशावर, मासहरा व दीगर अहम इलाकों में जाने वाली पब्लिक व दीगर ट्रांसपोर्ट यहां से गुजरती है। ये सड़क पंजाब के पसमानदा तरीन इलाका में से गुजरती है, जिसकी वजह से इसको वन वे कारपेटेड नहीं बनाया गया। सोशल मीडिया पर इस रोड को कातिल रोड का नाम दिया गया। वकला बिरादरी ने एहतजाज करते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातिल रोड को वन वे किया जाए। कातिल रोड डबल करो, कातिल रोड डबल करो। तेज रफ्तारी और सड़क की गैर मुनासिब सूरत हाल के बहस कौमी शाहराह के 80 किलोमीटर के हिस्से में खौफनाक हादसात मामूल बन चुके हैं। हमजे वाली के नजदीक मुसाफिर कोच और ट्रेलर में तसादुम के बहस 23 अफराद मौके पर दम तोड़ गए और ये एक बहुत बड़ा खौफनाक हादसा था। हैड पाइनंद के करीब साल में 5 खौफनाक ट्रैफिक हादसे हुए हैं, जिनमें 19 अफराद जान बहक हुए हैं। चौक परमर के नजदीक हाईएस्ट और मुसाफिर कोच में तसादुम से एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 14 मुसाफिर जिंदगी की बाजी हार गए। अलीपुर की आवाम आए रोज के हादसात में इज्तिमाई जनाजे उठाकर थक चुकी है। कैमरामैन मुदस्सिर के साथ मलिक फयाज हुसैन वालवट, नुमाइंदा वक्त न्यूज, अलीपुर। अहमदपुर शर्किया में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की तामीर में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया की मिली भगत से पैमाइश भी गलत की गई है। अहमदपुर शर्किया में 43 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली वन वे रोड की तामीर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल और गलत पैमाइश पर इलाका वकील सरापा एहतजाज हैं। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि सब इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से रोड की गलत पैमाइश की गई, जिस पर उनके तहफ्फुजात हैं। इस मौके पर ताजरों का ये कहना था कि 62 दुकानदारों से सामने सड़क को 17 फीट चौड़ा रखा गया है, जबकि गरीब दुकानदारों के सामने सड़क को 22 फीट चौड़ा किया जा रहा है। मैं अकेला इस घर का वारिस हूँ, ना मेरे अब्बू है, तो इसे बड़ी मुश्किलों से हमने इस दुकान को तामीर किया है। कुछ लोग ये ऐसे हैं जो हमारी बात ही बिल्कुल नहीं सुन रहे। हमारी रिक्वेस्ट है, अरसा हो गया हमें भागते भागते जी, गरीब हैं हम लोग, ये जगह बनाई थी हम लोगों ने, अब ये जो है नाइंसाफी हो रही है। एक तरफ से 17 फुट ली जा रही है, एक तरफ से 22 फुट ली जा रही है। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया कि मथुरा रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीवरेज लाइन में भी करप्शन की जा रही है। महकमे पब्लिक हेल्थ के सब इंजीनियर और ठेकेदार की मिली भगत से न सिर्फ नाकिस मटीरियल जबकि छोटे साइज के पाइप इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में बरसात के दिनों में निकासियाब का निजाम बुरी तरह मुतासिर होगा। मुतासरा दुकानदारों और इलाका वकीलों ने वज़ीर आला पंजाब से करप्शन में मुलविस सब इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। एक अच्छी खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। शेखुपुरा में सरकारी स्कूल्स का निज़ाम खासा बेहतर है। स्कूलों में मसाइल बहुत कम और मयार तालीम बेहतर होने के बाइस आवाम का भी इस निज़ाम पर इज़हार इत्मीनान है। जिला भर के स्कूलों से मुतालिक जानेंगे शेख इम्तियाज की इस रिपोर्ट में। बोर्ड के सालाना इम्तिहानात में 100% रिजल्ट, खूबसूरत बिल्डिंग, साफ सुथरे क्लासरूम और इन क्लासरूम में मुस्तकबिल के मैमार तालीम हासिल करते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, ये मनाजर हैं गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल इलामा इकबाल पार्क के, जो पंजाब हुकूमत के नारा पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब की अमली तस्वीर नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ की तलीमी इस्लाहात प्रोग्राम के तहत आला तलीम याफ्ता असातिज़ा की तकर्री स्कूलों में बच्चों को मुफ्त कुतुब की फराहमी और मैट्रिक तक फीस की माफी के साथ साथ म्यार तलीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने MA MSc असातिज़ा को इन स्कूलों में अपॉइंट करना शुरू कर दिया है, जिसका नतीजा ये निकला है कि ये जो टीचर्स हैं MA MSc, ये बड़ी डिवोशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ इन तलबा को एजुकेट कर रहे हैं। यही वजह है कि वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों में दाखिल करवा रहे हैं। बुक्स जो हैं हम लोग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, फीस भी नहीं है, हम यूनिफॉर्म्स वगैरह भी गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कर रही है। जो डिजर्विंग बच्चे हैं इवन उनके साथ भी कॉपी वगैरह जो भी उनके स्कॉलरशिप्स वो खुद दिए जाते हैं। गवर्नमेंट MC एलिमेंट्री स्कूल इलामा इकबाल पार्क का शुमार भी शेखुपुरा के इन अदारों में होता है, जो अपने तलीमी मेयार की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पढ़ो पंजाब बड़ो पंजाब विजन के तहत सरकारी स्कूलों में तलीम के मेयार को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है।
تاکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے بچے بھی معیاری تعلیم حاصل کر سکیں۔ کیمرہ مین محمد حنیف تبسم کے ساتھ شیخ امتیاز، وقت نیوز، شیخوپورہ۔ تمام تر پابندیوں کے باوجود بھاولپور میں ایل پی جی کی غیر قانونی ریفلنگ کا سلسلہ سرعام جاری ہے۔ بھاولپور میں حکومتی پابندیاں ہوا میں اڑا دی گئی ہیں۔ شہر بھر میں جگہ جگہ ایل پی جی کی غیر قانونی طور پر ریفلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ بھاولپور کے گنجان آباد علاقوں میں سرعام کمرشل گاڑیوں میں گیس فلنگ کی جا رہی ہے، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا جنم بن سکتی ہے۔ مظفر گڑھ میں منعقدہ تھل جیپ ریلی کا آج آخری روز ہے۔ ریس میں 65 گاڑیوں نے حصہ لیا اور اب تک کی ریلی میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے جعفر مکسی کو برتری حاصل ہے۔ مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد ریس میں 65 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ مظفر گڑھ کے علاقے ہیڈ محمود والا میں 3 روزہ تھل جیپ ریلی کا انعقاد کیا گیا، تاہم آج ریلی کا آخری روز ہے۔ ریلی کے شرکاء نے 3 کلومیٹر ٹریک پر گاڑیاں چلا کر گاڑیوں کی صلاحیت جانچی۔ تھل جیپ ریلی کے کوالیفائنگ راؤنڈ کا افتتاح ڈی ایچ اے کے پروجیکٹ مینیجر بریگیڈیئر حماد نے کیا، جبکہ ریسر جعفر مکسی نے کوالیفائنگ راؤنڈ شروع کیا۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی، جبکہ ریلی میں سابق وفاقی وزیر جام کمال بھی حصہ لے رہے ہیں۔ میگا ایونٹ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ریلی کے لیے بہترین انتظامات پر شائقین نے ڈی سی او شوکت علی، اے ڈی سی مہر خالد اور ای ڈی او سی ڈی 3 غلام عباس سومرو کی کاوشوں کو سراہا۔ 3 دن کی ریس کے بعد بلوچ ریسر جعفر مکسی کو نمایاں برتری حاصل ہے، جنہوں نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ریس کے اختتام پر اول، دوم اور سوم آنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی ملتان کے لنڈا بازار کی رونق میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے لنڈا بازار کا رخ کر لیا ہے، لیکن لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا جن بوتل سے باہر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ملتان سے اعجاز ترین کی رپورٹ۔ مہنگائی نے نہ صرف غریب بلکہ متوسط طبقے کے لوگوں کو بھی ان مراکز کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ سردیوں کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے کون سی چیز ہے جو لنڈا بازار میں دستیاب نہیں ہوتی؟ سویٹر، جرسیاں، جیکٹس، جرابیں، کمبل، کوٹ اور پتلون خریداروں کی توجہ کا مرکز ہوتے ہیں۔ خریداروں کو یہ شکایت ہے کہ اب لنڈا فروخت کرنے والوں نے بھی ان ایشیا کے نرخ بڑھا دیے ہیں اور لنڈا بھی غریبوں کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ والدین ہمیں پڑھا رہے ہیں اور خرچہ کر رہے ہیں اور نئی چیزیں ہم نہیں خرید سکتے کیونکہ وہ بہت مہنگی ہے، اس لیے ہم لنڈے بازار کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے چیز سستی مل جاتی ہے۔ مہنگائی بہت ہے، اس لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکتے ہم، اب لنڈا خریدنے کے لیے آئے ہیں، لیکن ادھر بھی مہنگائی بہت ہے، جو چیز 50 روپے کی وہ 200 روپے کی دے رہے ہیں، اب غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ دکانداروں کا کہنا ہے خریدار ابھی تک پرانے دور میں زندہ ہیں، جب یہ اترن سستے داموں دستیاب ہوتی تھی تو ہم سستے فروخت کرتے تھے، اب ہمیں جن نرخوں پر یہ چیزیں ملیں گی ہم اسی حساب سے فروخت کرتے ہیں۔ روزی تو ہم نے بھی کمانی ہے، گاہک تو کسی طور پر مطمئن نہیں ہوتے۔ پیچھے سے مال مہنگا آ رہا ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، 100 والی چیز گاہک 50 کی مانگتا ہے اور بچوں کے لیے ہم اپنی روزی کے لیے بیٹھے ہیں۔ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے لنڈے کا کاروبار بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ اگر قیمتوں میں اضافے کا یہی حال رہا تو آئندہ غریب لوگ لنڈے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ کیمرہ مین مختار احمد کے ساتھ اعجاز ترین، وقت نیوز، ملتان۔ لاہور ہائی کورٹ کی 150 سالہ تقریبات کا سلسلہ صوبے بھر میں جاری ہے۔ ایوانیہ دل وہاڑی میں پودا لگا کر تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں وہاڑی سے محمد یوسف بھٹی اپنی اس رپورٹ میں۔ کورٹ لاہور کو وجود میں 150 سال مکمل ہونے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور کی ہدایت پر صوبہ بھر میں تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ یہ تقریبات 10 دسمبر تک جاری رہیں گی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سعید اللہ مغل نے اس حوالے سے بتایا کہ ان تقریبات کا مقصد عدل و انصاف کی فراہمی کو مزید بہتر کرنا ہے۔ 150 سالہ اینیورسری جو ہے اس کا بھی یہی آبجیکٹ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بہتر ماحول دے سکیں اور ان کو اویئرنیس دیں کہ یہاں عدالتیں
अदल इंसाफ का काम कर रही हैं। और चीफ जस्टिस का जो विज़न है जस्टिस के हवाले से और माहौल के हवाले से हम इसका इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाएंगे। 150 साल तकरीबात के सिलसिला में ऐवान अदल में सेशन जज सईदुल्लाह मुगल ने एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अशरफ भट्टी, सीनियर सिविल जज रहमत अली और सिविल जजेस चौधरी आमर मंजूर, इमरान फरूक और सदर बार शबीर अवान, जनरल सेक्रेटरी मसूद जफर और दीगर जजेस और वकला के हमरा पौधा लगाकर उन तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया है। ये पौधा जात लगाएं ताकि माहौल जो है वो आलूदा न हो और दरख्त लगाना सदका जारिया होता है। ऐसे प्रोग्राम इनके हर साल होने चाहिए ताकि अवाम में और कोर्ट में लाइजोन रहे और लोगों का एतमाद कोर्ट पे रहे। तकरीबात के सिलसिला में ऐवान अदल में पुरानी और यादगार तस्वीरों की नुमाइश भी लगाई गई है, जबकि आखिर पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। और शामिल करेंगे सिंध भर से खबरें। मीरपुर खास में केबल ऑपरेटर्स की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उनका कहना था कि मार्केट्स में अब भी भारतीय चैनल्स दिखाने के लिए आलात मौजूद हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुजाहिरे में शामिल केबल ऑपरेटर्स ने अपने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि पैमरा की जानिब से केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की जा रही है। हुकूमत की जानिब से हमें इंडियन चैनल्स बंद करने के लिए 15 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी, जिस पर अमल किया गया। ताहम मार्केट में अब भी बासानी इंडियन चैनल्स देखने के लिए मुख्तलिफ आलात फरोख्त हो रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स का मजीद कहना था कि पैमरा की जानिब से जो वादा किया गया था उसे पूरा नहीं किया गया। केबल ऑपरेटर्स ने मुतालिबा किया है कि इंडियन मवाद देखने के लिए मार्केट में मौजूद आलात का फौरी तौर पर खात्मा किया जाए। नवाही इलाके में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर घरों को मिसमार करने पर अहले इलाका ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। लाड़काना में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर घाड़वा के इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के नाम पर उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कानूनी तौर पर 15 फुट तक तजावुजात का खात्मा किया जा सकता है, मगर अमला बिला जवाज घरों को मिसमार कर रहा है। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया है कि उन्हें बेघर होने से बचाया जाए और सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लिया जाए। लाड़काना में सुतेले मामू ने कमसिन भांजी को ज्यादती का निशाना बना डाला। इंसाफ न मिलने पर बेबस वालिदैन ने एहतजाज किया है। कंदकोट जिला के गांव करमपुर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हाशिम लाशारी ने अपनी बीवी और दीगर रिश्तेदारों के हमरा लाड़काना प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। इस मौका पर उन्होंने मीडिया को बताया कि इसकी 11 साला बेटी को सुतेले मामू जवाबदार खालिद हुसैन मिरानी ने घर में अकेला पाकर ज्यादती का निशाना बना डाला। उन्होंने मजीद बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो चुकी है, जिसकी बिना पर थाना करमपुरा में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मुजाहिरीन ने मजीद बताया कि मुलजिम बाअसर है, जबकि केस से दस्तबरदार होने के लिए संगीन नताज की धमकियां भी दी जा रही हैं। वालिदैन ने आला हुकाम से मुतालिबा किया है कि मुलजिम को गिरफ्तार करके उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। मीरपुर माथेलो की सौगात पेड़े और खोया, जो अपनी लज्जत और खुश जायके के बाइस मुल्क भर में मशहूर है। इस खास सौगात को तैयार होने के लिए क्या मराहिल हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीरपुर माथेलो के पेड़े और चक शहबाजपुर का खोया अपनी लज्जत में जवाब नहीं रखता। घोटकी के पेड़े और खोया अपनी लजीज मिठास के बायस न सिर्फ अंदरूने मुल्क बल्कि बैरूने मुल्क में भी मशहूर है। खालिस और ताज़ा दूध से तैयार किया जाने वाला खोया मावा मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तैयार किया जाता है, जिसकी तैयारी में कारीगर खूब मेहनत करते हैं। कारीगर सुबह सवेरे नवाही देहात से ताज़ा दूध खरीद कर लाते हैं और चीनी डालकर उसे खूब गर्म किया जाता है। मावा की तैयारी के बाद उसे एक बर्तन में डालकर और बादाम और पिस्ता छिड़कने के बाद ग्राहकों के लिए पेश किया जाता है। खास तौर पर घोटकी और मीरपुर माथेलो में खालिस दूध से तैयार होने वाले पेड़े शादी समेत दीगर तकरीबात में मेहमानों के लिए पेश किए जाते हैं। दूसरी जानिब पेड़े और खोए की तैयारी और खरीदो फरोख्त सैकड़ों मजदूरों के रोजगार का जरिया भी है। मीरपुर खास में जारी 2 रोजा फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। टूर्नामेंट को बड़ी तादाद में आवाम ने देखा। फाइनल मैच शाह अब्दुल लतीफ कॉलेज और डिग्री कॉलेज टंडू मोहम्मद खान के दरमियान खेला गया, जिसमें शानदार खेल के बाद मीरपुर खास की टीम ने मैच अपने नाम कर लिया। मैच देखने के लिए जिले इंतजामिया और महकमा तालीम के अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि तालीम के साथ साथ खेलों का फरोग भी लाजिम है।
और अब शामिल करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से खबरें। एक अफसोसनाक वाकया पेश आया सवात में, जहां ट्रक की टक्कर से दीवार गिर गई और 2 कमसिन बच्चियां मलबे तले जाँ बहक हो गईं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के मुताबिक वाकया सवात के इलाके मेंगोरा गुलबहार कॉलोनी में पेश आया, जहां ट्रक की टक्कर से दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में दीवार के करीब बैठी 2 कमसिन बच्चियां मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गईं। मौके पर मौजूद मकामी अफराद ने बच्चियों की लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस के मुताबिक हादसे का जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर है, क्योंकि इसकी तेज रफ्तारी ही हादसे का बाइस बनी। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा पर करप्शन का इल्जाम लगाते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। बड़ा मुतालबा लेकर पेशावर में तहरीक इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। पेशावर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने गवर्नर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए उन्हें ओहदे से हटाने के लिए एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने जीटी रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल सफर झगड़ा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी करते रहे। उनका कहना था कि गवर्नर ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है और आला ओहदों पर अपने खानदान और दोस्तों को तैनात कर रखा है। एएनपी ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ केपी से जान छुड़ा रही है। 3 गड़ा से तकरीब से खिताब करते हुए एएनपी के रहनुमाओं का कहना था कि सूबे में रिकॉर्ड तरक्याती काम पख्तूनख्वा का नाम सूबाई खुद मुख्तारी का हसूल एएनपी दौर के कारनामे हैं। मौजूदा सूरत हाल हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है और अब पीटीआई के कायदीन सूबाई हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए बहाने की तलाश में है, मगर जमहूरी सेटअप के खिलाफ तमाम तर साजिशों को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एएनपी पख्तून कौम की बका का जंग लड़ रही है। अमन के क़याम के लिए एएनपी ने कायदीन और कारकुनान समेत 800 शोधा की कुर्बानी दी है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा है कि हुक्मरानों की गलत पॉलिसीज की वजह से मुल्क में इंतशार बरपा है। मौजूदा वक्त दीनी जमातों के इत्तेहाद का तकाजा कर रहा है। लोअर दिन में तकरीब से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी का सिर्फ केपी सतह पर पीटीआई के साथ एक मुतय्यन चार्टर के तहत इत्तेहाद हुआ है, मरकजी सतह पर किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि मिंबरों मेहराब से इत्तेहाद और इत्तफाक का नारा बुलंद हो और इस मकसद के हसूल के लिए दीनी कुव्वतों का इत्तेहाद वक्त का अहम तकाजा है। मुस्लिम लीग नून अपर दीन ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की सियासत को मुस्तरद कर दिया है। रहनुमाओं का कहना है कि तहरीक इंसाफ धरनों की बजाय सूबे की जानिब तवज्जो दे। प्रेस क्लब अपर दीन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि दोनों जमातें वजीर आजम के मुशीर को गैर मुंतहिब शख्स कहलाने और इलाके की तरक्की में रुकावटें डालने के अलावा आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ हैं। उन्होंने कहा कि मरकज में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जबकि वजीर आजम की जानिब से देर के लिए मंजूर करदा मंसूबों को जमात इस्लामी अपने खाते में डालने और सियासत चमकाने की कोशिश कर रही है। केपी के सूबाई वजीर इनायतुल्लाह खान ने कहा है कि अपर दी जमात इस्लामी का किला है, आने वाले इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर अक्सरियत हासिल करेंगे। अपर दीन के नवाही इलाके में ग्रिड स्टेशन के इफ्तिताह के बाद तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वजीर इनायतुल्लाह ने कहा कि दीरबाला के अवाम ने हमेशा जमात इस्लामी पर एतमाद करके मैंडेट दिया और यूनियन कौंसिल से लेकर सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान तक अक्सरियत हमारी है। यही वजह है कि दीन में तरक्याती कामों का जाल बिछाया हुआ है। उनका कहना था कि इनफरादी कामों के साथ साथ मेगा प्रोजेक्ट्स के जरिए इलाके की पसमानदगी खत्म हो रही है। सूबाई वजीर खजाना मुसफ्फर जैयद एडवोकेट ने कहा है कि एहतजाज तमाम सियासी जमातों का जमहूरी हक है, सिस्टम को कोई खतरा नहीं, मौजूदा सूबाई हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी। सूबाई वजीर खजाना ने तेमरगरा में पख्तूनख्वा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एसोसिएशन के ज़रिए तमाम हाल ही में तरक्की पाने वाले 122 ऐसे असातिज़ा के एजाज़ में मुनक़िदा तकरीब से खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन और अक़रबा परवरी है। पारा चनार में असातिज़ा ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और निजी तालीमी इदारों के हवाले से हुकूमती पॉलिसीज़ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि अगर बोर्ड तब्दील किया गया तो इसके खिलाफ अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे।
प्रेस क्लब पारा चनार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असातिज़ा का कहना था कि निजी तालीमी इदारों को गलत पॉलिसी की वजह से तबाह किया जा रहा है, मगर इस किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मजबूर किया गया तो बोर्ड की तब्दीली और अदालतों में जाने पर मजबूर होंगे, जबकि कौमी और सूबाई असेंबली के सामने धरने भी दिए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत तालीम कुछ पॉलिसी अपना रही है, जबकि 8वीं और 5वीं जमात के इम्तिहानात सेंट्रलाइज करना चाहती है, जो हमें किसी सूरत कबूल नहीं। प्राइवेट सेक्टर को हरासां किया जा रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। इससे साबित होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के बारे में अपने दिल में कोई नरम गोशा नहीं रखती है। सारी की सारी एलीट के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो अगर वो ट्रस्ट करते हैं हम पर, तो फिर गवर्नमेंट को भी ट्रस्ट करना चाहिए, हमारे खिलाफ पाबंदियां नहीं लगानी चाहिए। नेशनल एजुकेशन काउंसिल के रहनुमाओं ने कहा कि प्राइवेट तालीमी इदारों के हवाले से हुकूमत ने पॉलिसी न बदली तो फेडरल या आगा खान बोर्ड से इल्हाक या अदालत जाने पर मजबूर होंगे और कौमी और सूबाई असेंबलियों के सामने धरने देंगे। और यहाँ जाने की खबरें सूबा बलोचिस्तान से। कोयटा में मजदूर रहनुमाओं ने सानिहा गडानी के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया और लवाहिकीन को माली इमदाद देने का मुतालबा किया है। कोयटा में मजदूर रहनुमाओं ने सानिया गिडानी के खिलाफ मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि सानिया गिडानी इंतजामिया की नाअहली का नतीजा है, जिसमें मुल्क भर में मेहनत मजदूरी करने वाले मजदूरों की जानें जाया हुई हैं। ये एक बड़ा नुकसान है। उन्होंने मुतालबा किया है कि आइंदा ऐसे साने से बचने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। मैं शोहदाए गडानी को सुर्ख सलाम पेश करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इनके लवाहिकीन को बारी मुआवजा दिया जाए और जो वहाँ पे जो ठेकेदार है, जो जहाज़ मालिक है, इनके खिलाफ या इसके अलावा जो लोग मुलविस हैं, इनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए। रैली में शरीक मजदूरों ने मुतालबा किया है कि सूबाई हुकूमत जांबाक होने वाले मजदूरों के लवाहिकीन को माली इमदाद फराहम करे। चमन में सानिहा कोयटा के खिलाफ JUI नजरियाती ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली भी निकाली। कोयटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ JUI नजरियाती ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर दहशतगर्दी के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिले बर्दाश्त है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को बेनकाब करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। मासूम और बेगुनाह लोगों का खून बहाने वाले जालिमों का इस्लाम या पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सानिहा कोयटा के शोहदा की याद में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के ऑफिस में शमें रोशन की गई और फातह ख्वानी भी की गई। सानिहा PTC ने पूरे सूबे को सोग में मुब्तला कर रखा है। हर शहर सोगवार बन गया है। सानिहा कोयटा के शोहदा की याद में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद के ऑफिस में शमें रोशन की गई और फातह ख्वानी की गई। इस मौके पर कमिश्नर नसीराबाद समेत जिला के तमाम ऑफिसरान ने शिरकत की और फातह ख्वानी की। तकरीब में शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआएं भी की गईं। ITFC मेजर जनरल शेरफगढ़ ने दुकई का दौरा किया और FC पाक और FC से हॉस्टल का इफ्तिताह किया। उनका कहना था कि अवाम के साथ मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। ITFC शेरफगढ़ ने आज दुकई का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कोल माइंस प्रोजेक्ट के फंड से तामीर होने वाले FC पार्क और FC हॉस्टल का इफ्तिताह किया। उनके हमरा सेनेटर सरदार याकूब खान नासिर, साबिक MNA सरदार इसरार खान तरीन और दीगर कबायली अमायदीन भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी है और उन्होंने कहा कि FC और अवाम मिलकर दहशतगर्दी का सफाया कर सकते हैं। पार्क के इफ्तिताह के मौका पर उनका कहना था कि पार्क अवाम की तफरीह के लिए बनाया गया है। इसी तरह हॉस्टल भी इलाके के तालिबे इल्मों के लिए बनाया गया है। जाफराबाद में वापडा मुलाजिमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में वापडा हाइड्रो यूनियन के वर्कर समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। शुरका ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुतालबात दर्ज थे। एहतजाजी रैली वापडा ऑफिस से निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई वापस वापडा ऑफिस के सामने इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर रहनुमाओं ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि एम्प्लॉय सन कोटा पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। सन कोटा हमारा कानूनी और जायज हक है।
گورنر بلوچستان محمد خان اچکزئی نے کہا ہے کہ تعلیم ہی معاشرے کی ترقی کا سبب بنتی ہے. پڑھا لکھا معاشرہ سب کے لیے رول ماڈل ہے. لورالائی یونیورسٹی میں طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے گورنر بلوچستان نے کہا کہ ضلع میں ویٹرنری کالج قائم کیا جائے گا. اس کے علاوہ یونیورسٹی میں آج سے اکیڈمک بلاک، لیکچرار اور بوائز ہاسٹل بھی فعال ہوں گے، جبکہ طلبہ کی مشکلات بھی کم کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ نوجوان ملک کا سرمایہ اور مستقبل ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تعلیم کی جانب بھرپور توجہ دیں. وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما علامہ مقصود ڈومکی کا کہنا تھا کہ حکومت نیشنل ایکشن پلان کو سیاسی مخالفین کے لیے استعمال کر رہی ہے. ڈیرہ الایار میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے علامہ مقصود ڈومکی کا کہنا تھا کہ ملکی صورتحال انتہائی مخدوش ہو چکی ہے. خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا. کوئٹہ میں بسوں سے اتار کر خواتین کو بے رحمانہ قتل کیا گیا. کراچی میں مجلس کے دوران خواتین کا قتل قابل مذمت ہے، جبکہ سانحہ کوئٹہ میں بے گناہ پولیس اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کالعدم تنظیموں کے خلاف بنایا گیا تھا، جبکہ حکومت نیشنل ایکشن پلان کو اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں کالعدم تنظیموں کے اڈے موجود ہیں جن میں دہشت گرد تربیت حاصل کر رہے ہیں. ہماری نشاندہی کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ کا کہنا ہے کہ ضلع میں حالات اب پہلے سے بہتر ہیں، تاہم ہماری ضرورت پڑی تو تعاون کے لیے تیار ہیں. جعفر آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ نیشنل پارٹی کے دور میں ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کافی حد تک کامیاب رہے، مگر موجودہ حکومت کے اقدامات تسلی بخش نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ آج بھی یہی موقف ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ مذاکرات کے ساتھ حل کیا جائے. آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ہماری پارٹی نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ الیکشن میں کس کے ساتھ اتحاد کیا جائے. عبد المالک بلوچ نے مزید کہا کہ عمران خان کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے جمہوریت کو نقصان پہنچے. صحبت پور میں بلوچ صوفی بزرگ حضرت قادر بخش رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری ہیں، جس میں صوبے بھر سے عقیدت مند شرکت کر رہے ہیں. عرس کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح رکن بلوچستان اسمبلی میر اظہار کھوسو اور ڈپٹی کمشنر نے مزار پر چادر پوشی کر کے کیا. افتتاحی روز بلوچ کلام بھی پڑھا گیا اور خصوصی دعا کی گئی. میلے میں مختلف اشیاء کی خریداری کے لیے مختلف اسٹالز لگا رکھے ہیں جو بچوں اور بالخصوص خواتین کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں. عرس کی تقریبات کی رونقیں بڑھانے کے لیے سرکس کا بھی انتظام کیا گیا ہے، جبکہ دیگر تفریحی پروگراموں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اور اب شامل کریں گے آزاد کشمیر سے خبریں. آزاد کشمیر جہاں اپنی معتدل آب و ہوا اور قدرتی حسن کی وجہ سے مشہور ہے، وہیں صحت مند سرگرمیوں کا بھی تسلسل سے انعقاد کیا جاتا ہے. راولاکوٹ میں منعقدہ 10 روزہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں سید منصور اپنی رپورٹ میں. آزاد کشمیر کے بانی صدر سردار محمد ابراہیم خان کے نام پر غازی ملت میموریل آل پاکستان آزاد کشمیر فٹ بال چیمپئن شپ کا راولاکوٹ میں آغاز کر دیا گیا. وادی پل کے وسط میں صابر شہید اسٹیڈیم میں اس ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے انعقاد پر مہمان خصوصی اور دیگر نے کھیلوں کی افادیت بیان کرتے ہوئے بانی صدر آزاد کشمیر کو خراج تحسین پیش کیا، جس کے بعد مہمان خصوصی کا کھلاڑیوں سے تعارف کروایا گیا. اس فٹ بال ٹورنامنٹ میں 16 نامور ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جنہیں 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے. 10 روز تک جاری رہنے والے اس ٹورنامنٹ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہر مقابلہ کانٹے دار ہوگا. سید مسعود گردیزی، وقت نیوز، راولاکوٹ، آزاد کشمیر. کراچی سے خیبر تک کا اقبال آپ نے جانا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے رہیے وقت کے ساتھ.